guys, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. I am Mahesh V. Kadarwan. I am a financial fighter, financial freedom specialist. Today I am going to talk to you a very interesting topic which some of might may not know how to think about it, whether there is a relation or not, and there are many questions were there. So I quickly drafted a small presentation to present to you, and I wanted to uh, tell to you about this topic, this very important topic. And before that, I would like to the who are the first time subscribers, who are first time listening this video or viewing this video, please go to my Facebook page, that is MPK Financials, like that page and follow that page for more updates. And my YouTube channel, that's MBK Financials, click on the subscribe button and there's a bell icon, click on all so that you can get updates every time whenever I upload a video. So this is about the liking and subscribing. Well, I will just share you my small intro who I am at. So I am Mahesh V. Kadarivan. I am a financial freedom specialist, father of two lovely goldfish, husband to a super duper marathon runner, sales executive turned banker, then life insurance consultant, and now founder of MBK Financials as financial freedom specialist. My mission is to help 1 lakh people to live a financially happy life. And that's a very big mission. And because I can't get alone, I need more and more freedom financial achievers to get us to that level. So, what is the topic? What I am going to teach you, or I am going to show you, or I am going to educate you? What are the spiritual ways of attracting money? Now, this is a very interesting topic, and lot many people were asking about. My clients were also asking, and some of the recent forums also I have seen. See, they are saying that there is no connection. Some are saying there is a connection. So a lot of broad perspectives are there. But today I have listed down some of the things which I have personally implemented because I follow the philosophy of learn, do, and teach. So what I learned from my mentors, what I learned to educate my self-earning, I invest a lot of money in self-earning, and then I implement on myself and see the results, what I am getting. And if the results are not as per my satisfaction, I never teach them. But as per my satisfaction is there, I'm getting the results, satisfied results, what I want to achieve for my goals. And then at that time, I share and I teach and educate each one of you because you need to be on that same path, the same roadmap of financial freedom, what I achieve. Because it's not a solo man's game, it's a team game, and we need to understand that each and everyone is contributing to this success. So without further delay, I am going to start what is the spiritual ways of attracting money. What is money? What is money? Have you ever thought about that? पैसा तो बहुत मिल रहा है, पैसा हमें यहीं से मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पर क्या है पैसा? पैसा पैसा क्या है? It's a current medium of exchange in the form of coins and bank notes, to be more specific. Money also means the asset, properties, and resources owned by someone or something. Second question मैं आपसे सवाल से पूछ रहा हूँ. Why do we need money? पैसा क्यों चाहिए? पैसा पैसा क्या है ये तो समझ गए, पर पैसा क्यों चाहिए? डेली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, आपके रिलेशनशिप संबंध बनाने के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सेल्फ एस्टीम के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. वी ऑल हैव सम सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ ईगो. नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी क्या है? ब्रॉड कंसेप्ट में उसका बहुत मीनिंग, बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, लाइक आई टोल्ड अर्लियर आल्सो. But in general, it includes a sense of connection to something better than ourselves, and it typically involves a meaning, search of meaning for life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई कभी कभी अपने जिंदगी में हमें मतलब ही नहीं पता हम क्यों ये जी रहे हैं लाइफ को. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये जानना है. एंड व्हाई इज स्पिरिचुअल सो इम्पोर्टेंट? नंबर ऑफ रीजंस, पर मैं सिर्फ 3 या 4 रीजंस मैंने ऑलरेडी डॉट ऑन किए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव personally feel that, so I will going to share that with you. So there are a number of reasons why this is important, but I have listed down something. Give the meaning of life, hope to hopeless, help in making better choices,
bring people together, add to your bucket of happiness and contentment. आप मुझे बताइए, पांचवा पॉइंट जो है, add your bucket of happiness and contentment. कितने लोग आज हैप्पी है? 80% लोग नहीं हैप्पी है दोस्त। मेरे दोस्त याद रख, दोस्तों आपको ये समझना है कि पैसा कमाना ही जरिया नहीं है, पैसा कमाना ही लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। आपको एंजॉय करना है, आपको जीना है उस पैसे के साथ। आप 60 वर्ष में, 70 वर्ष में आप वो पैसे से क्या कमाओगे जब आपका हेल्थ ही बराबर नहीं है? सोचिए आप, कभी आप हेल्थ के बारे में देखा आपने? क्या खाना खा रहे हो? कभी आपने एक्सरसाइज किया? आप वो रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करोगे जब आप पैसे लेके आते हो? आप बोलते हो मेरे बीवी के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चे के लिए। जब आपके पास टाइम ही नहीं हो बच्चों को संभालने के लिए, तो ये पैसे का क्या मतलब? सोचिए। In the spiritual world, money is energy and money is power. Like all other forces such as wind, fire, money is also subjected to certain universal laws and principles. और अगर हम ये लॉस को समझ सकते हैं और हमारे जो थिंकिंग है और एक्शंस को अगर हम अलाइन कर लेते हैं, देन देयर इज नो वे बूम, आपको मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगा, एंड दैट टू इन अबंडेंस। किस्तों में नहीं आएगा, अबंडेंस में आएगा, अबंडेंस में। Most of us born brought with the importance of hard work, intelligence, education, and other good factors of earning money and being successful. ये मैं भी करता था, मेरे माँ पिताजी मुझे कहते थे, उनके माँ पिताजी को वो भी कहते, पर कितने सही है ये बात? My dear friends, however, by experience I am saying certain other factors also play important role. मैं भी पहले ये विश्वास करता था यही सब कुछ चाहिए, पर बहुत सारे other factors है which are affecting our life and determine the amount of money. No matter आप कितने investment planning कीजिए, no matter आप financial planning कीजिए, no matter आप expert हो health management में, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मेरे दोस्त ये याद रखिए आप, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट होता है। कितने लोग ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुने हैं? बताइए। कितने लोग ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखे हैं और एक्सपीरियंस किए? कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि कितने लोग ने सीन द सीक्रेट मूवी, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, मलयालम में, गुज्जू में, राजस्थानी में, कोई कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज में सुने, आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड टेल मी हाउ मेनी पीपल हैव सीन द सीक्रेट मूवी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, 3 to 4 आवर्स का होता है, यूट्यूब में आप देख सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ है, यू कैन सी एनी लैंग्वेज। When these ways of attracting money is followed, they have a prosperity to instantly attract more money from infinite source. And that will defy our normal understanding of cause and effect. ये क्यों हो रहा है और इसका इफेक्ट ऐसा क्यों आ रहा है, ये परिणाम क्यों आ रहा है हमें मालूम नहीं। क्यों हमारे से भी ऊपर एक शक्ति होती है जो हमें देख रहा है, जो हमें महसूस कर रहा है, और अगर हम उस पे अमल रहे, अब उसमें डिपेंडेंट रहे, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। एंड इट गोज बियॉन्ड व्हाट इज लॉजिकल एंड रैशनल। हाँ, आप ये मत सोचिए लॉजिकली आप सोचेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट कांट बी डिफाइंड आल्सो रैशनली। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप सोचने लगोगे तो बहुत साल लग जाएगा आपको सोचने के लिए, बट दैट इज नॉट द थिंग। आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ से क्या आ रहा है, आप ये सोचिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द सक्सेस व्हाट यू वांट। I promise you that. And such miraculous and abundant results are indication of the wonderful phenomenon of manifestation of in the world. Manifestation का आपने नाम सुना है? I am sure आपने बहुत बार सुना होगा। अब फिर भी एक बार सीक्रेट वीडियो जाके देखिए एंड कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आई हैव सीन सेकंड टाइम, आई हैव सीन 100 टाइम, आई हैव सीन 58 टाइम। अब बताइए, आई नीड टू नो ये वीडियो सच में आपको मदद कर रहा है कि नहीं, आपको वैल्यू दे रहा है कि नहीं, आपको नॉलेज दे रहा है कि नहीं, ताकि वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये आप एक बात आप नजर में रखिए, याद रखिए, ये जो भी वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे मेंटोर से मैंने सीखे, जो मैंने सेल्फ लर्निंग किए हैं, जो मैंने पैसे खर्चे किए मेरे सेल्फ लर्निंग के लिए, बहुत सारे खर्चे, लाखों से लाखों मैंने खर्चे किए। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न। मैं उस वैल्यू को मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आप उसे सीखिए, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर आप देखिए कैसा आपका ये हो जाता है।
It's a very important thing. It's very important thing, because if you see, there are a lot of things that are affecting money, and the spiritual is one way of attracting money. So मैंने लिस्ट ऑफ पॉइंट्स डाले हैं, आप एक बार देख लीजिए, मैं ये बोलता हूँ, सॉरी, उस पॉइंट्स में आप देखिए कि आप किस में फिट होते हो, एंड हाउ कैन यूज दैट वन पॉइंट वेयर यू कैन रियली चेंज योर लाइफ, एंड बूम, यू कैन be on a roadmap of financial freedom. Financial freedom is not a destination, it is a journey, my dear friends. It is a journey. Success is not a destination, success is a journey, मेरे दोस्त. और पैसा सक्सेस के बाद ही आता है, ना कि सक्सेस के पहले. ये एक बात आप जहन में डाल दीजिए. आप भले कोई भी कुछ भी बोले, आप ये बात जहन में डालिए कि सक्सेस के बाद ही पैसा आता है, पैसा सक्सेस के पहले नहीं आता है. जो भी अगर कहता है वो गलत है, वो गलत है. क्योंकि आपको समझना है, ये जो बड़े लोग आए, मिलेनियर्स, हाउ दे हैव बिकम मिलेनियर्स. You need to understand, they have not got that money. They've all started from zero. सब जीरो से स्टार्ट हुए हैं, and they have really worked hard to get to that level which now they are in. और हम ऊपर वाले शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ना कि नीचे हम नहीं देख रहे उन्होंने कितना मेहनत की है. आप फेसबुक को देखिए, आप मार्क जुकरबर्ग, कितना मेहनत किया उन्होंने. कॉलेज में बैठ के उन्होंने 4 पार्टनर्स या 3 पार्टनर बैठ के वो वेबसाइट बनाया, पर कितने मेहनत की है वो देखिए. और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए. एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, जेआरडी टाटा का पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज. So that's what I'm saying. So it's lot of things are going on, and always remember that money comes after success, but success के पहले money नहीं आता. So you have to work. That's what I'm saying. Success is a journey, not a destination. Now the gratitude. What is the first point? Is gratitude. It is very important spiritual law of money and wealth. When you are grateful to the universe for what he has given you, it merely responds by giving you. आप देते जाइए दोस्तों. आपको अगर पैसा चाहिए तो पैसा दिल खोल के आप दीजिए. अगर आपको प्रेम चाहिए, प्रेम दिल खोल के दीजिए आप. मेरे दोस्तों, ये मैंने किया है. डोंट बी टाइट फिस्टेड. मैंने ये भी गलती की है. आप चैरिटी देते हो, 10 रुपया है आपके पास, फिर भी आप 2 रुपया देते हो. क्यों देते हो आप? 2 रुपए में उसका कुछ फायदा नहीं होगा. मैं ये फिलोसफी मेरे दोस्त से मैंने सीखा है. मेरा कॉलेज का एक दोस्त है, वो क्या करता था, कभी भिखारी को ना पैसा नहीं देता था. सीधा उसको पूछता था, भाई तेरे को क्या चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, नारियल पानी चाहिए, कि क्या चाहिए, क्या चाहिए बता. उस टाइम वो भिखारी को अगर भूख लगा है और आपने उसको मदद की है, ये चैरिटी है. दैट्स द रियल फॉर्म ऑफ चैरिटी, एंड दैट्स आई हैव बीन डन. आई लर्न फ्रॉम माय फ्रेंड. आज के तारीख में मैं किसी को पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी जरूरत पूछ रहा हूँ, भाई तेरा जरूरत क्या है, क्या जरूरत क्या है उसका. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, दैट पर्सपेक्टिव. और आपको उस पर्सपेक्टिव से आपको जाना, चैरिटी देना है आपको. क्योंकि आप देखिए, 2 रुपए आप देखिए, मतलब नहीं. आप सोचेंगे 100 आदमी के पास जाएगा, 200 रुपए आएगा, वो 200 रुपए में दूसरा को दारू पी के चला भी जाएगा. तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ चैरिटी? यूनिवर्स इज लुकिंग एट, ये देख रहा है, ये ब्रह्मांड आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो. और अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो तो इंटेंशन गलत हो जाएगा. ठीक है. सो सेट योर इंटेंशंस, फोकस एंड पे अटेंशन. दैट्स फॉर माय सेकंड पॉइंट. आपका इंटेंशन करेक्ट होना चाहिए. पर इंटेंशन क्या होना चाहिए? अगर आप गोल लिखते हो तो क्या लिखते हो? स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए, स्पेसिफिक आइटम क्या चाहिए आप लिखना चाहिए. मैं आज आपको एक काम देता हूँ, और गिवन अ स्मॉल टास्क. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज योर स्पेसिफिक गोल एंड स्पेसिफिक नीड. जस्ट बताइए कि आई वांट टू अचीव 5 lakhs इन अ मंथ. आई वांट टू गेट मर्सिडीज एस क्लास. बताइए, पता है आपका गोल अगर आप लिखते हो और आप यूनिवर्स को बताते हो दिल खोल के, दिल चीर फाड़ के. बोलते हैं ना, हनुमान जी ने कैसे अपना पूरा छाती छीन के राम का पूरा बताया उन्हें. उस तरह से आपको बताना है अपना यूनिवर्स को कि आपको मुझे चाहिए ये. अब जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं मेरे दोस्त. ये याद बात रखिए माय डियर फ्रेंड्स. यू नीड टू आस्क टू योर यूनिवर्स व्हाट यू वांट, and that's there's no better way to write your goals in a specific and very intentional manner. And what I say is that it's actually combination of intention, focus and pay attention. So intention तो आपका सही हुआ, अभी focus कीजिए
कि आपको क्या चाहिए, उसी में आपको फोकस करना है। सो भले ही कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ से पैसा आ गया, पैसा जा रहा है, पैसा मैं कुछ चलो मैं ये खरीद लेता हूँ, ये खरीद लेता हूँ, होता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। That's what I'm saying. No, I am always following the philosophy of learn, do and teach. मैं सीखता हूँ, मैं करता हूँ और फिर मैं सिखाता हूँ। ये गोल्डन ट्रायंगल है जो मेरे मेंटोर मेरे सिखाते थे मुझे। So send your intention to the universe by talking to God. Next, you focus on the particular things, on amount of money, and then the magic of manifestation always starts in your life. और ये manifestation आप सो कभी याद भी नहीं रखोगे कि what is it. The secret is that, अब मैं आपको एक secret बताता हूँ, क्या सुनना है आपको? सबको secret पसंद है। ले लीजिए. If you focus on money or any other object, you will start attracting money or manifest that object in your life. But be careful, be careful. कि आपका इंटेंशन अगर सही नहीं है, आप अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, तो ब्रह्मांड भी आपको नेगेटिव ही देगा। आप पॉजिटिव सोचिए, क्या है पॉजिटिव में, क्या चाहिए आपको, नेगेटिव क्यों सोचिए भाई ये नहीं होगा। नहीं जो है ना, ये शब्द आपके डिक्शनरी से आप निकाल दीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब लोग कहते हैं, आपने देखा होगा आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है। तो शब्दों में ही आई एम पॉसिबल है, तो आप उस शब्दों को क्यों नेगेटिव ले रहे हो? सोचिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये पॉइंट में ही आपका आगे का पूरा चरित्र निर्माण होने वाला है। लेट द मनी फ्लोस, थर्ड पॉइंट, द नेचुरल स्टेट ऑफ द मनी, इट हैज टू बी इन सर्कुलेशन, दैट्स द स्पिरिचुअल लॉ। और अकाउंट कोई है, अकाउंटेंट कोई है, तो इकोनॉमिक्स कोई है, तो दे कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। आई एम नॉट डूइंग एनी रॉकेट साइंस kind of things, or not theory things. It is a spiritual law of money, and also the basic principle of economics, that you need to be in circulate of that money. So इसका मतलब क्या है? Therefore you pay to bills. आपका बिल्स पे करने में आपको तकलीफ क्यों होता है? बताइए ना, क्यों तकलीफ हो रहा है? क्या पैसा नहीं है आपके? पैसा है आपके पास, पर आपको देना नहीं है। आप खुद से सोचिए, आप खुद से ये प्रश्न आप वापस पूछिए कि क्या आपके पास पैसा नहीं है इनको देने के लिए? जो लोग आपको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं अभी के सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में, दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर 24/7, दे आर प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई 24/7, the society people are working for her, the watchman is working for her, every people is working for her, but why don't we give money to them? They are dues भाई, वो लोग सर्विस दे रहे हैं, उसके बाद तो पैसा मांग रहे हैं। That is what I say, no? Money comes after success. उन्होंने मेहनत किया, उसका पैसा आपको देना चाहिए, and we need to give. That's उनका हक है मेरा दोस्त, उनका हक। आपके साथ अगर ये हो सकता है, आपके बॉस ने बोला कि भाई तू काम कर, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, कैसा लगेगा आपको? है ना? उनका भी घर बार है, उनका भी एक फैमिली है, जो आपको देना है, और ये दिल खोल के दीजिए आप। ऐसा मत सोचिए कि मैं 29 तारीख तक रुकूंगा, लास्ट डे तक, और मैं तभी पैसा दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आगे आपके पास पैसा है, 15 तारीख को आप दीजिए, आपको शायद डिस्काउंट भी मिलेगा, या फिर आपको कुछ अगर ऑप्शन भी मिलेगा, और आपका कैसा रिकॉर्ड भी बढ़ता है, सिविल में भी, आपका स्कोर में भी इफेक्ट होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो नो, डोंट वरी अबाउट दैट, ये आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं है, किसी किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड फॉर दैट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, कि यू क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी कि छोटा सा स्टेप लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल, आपका लाइट बिल आ गया आता है 700-800 रुपया। मैं ये एक घर का बात कर रहा हूँ जिनके पास एसी नहीं है। आज के गर्मी के टाइम में 700-800 के ऊपर आता है, घर पे रहते हैं लोग। तो अगर आपके पास 700-800 रुपये है, तो पहला वो क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा सोसाइटी वाले को क्लियर कीजिए, फिर वॉचमैन करना है। इस तरह से आप कर सकते हो, एक साथ आप मत कीजिए। मुझे मालूम है एक साथ आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और चैरिटी का मैं आपको बोलता हूँ, चैरिटी का वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं, ये बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी में ना फोटो नहीं डालता हूँ चैरिटी। To be honest, I am very frank in that, because I don't believe in that publicizing my charity work, and I don't tell anybody about my charity work also. Because what happens is that, the very definition of charity for me, it gets boiled down to nothing. Because when I tell to my clients or tell to my uh, Facebook guy friends कि भाई मैंने चैरिटी किया, ये देखो मेरा फोटो है, आई डोंट लाइक दैट। और मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी वही प्रिंसिपल आप इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको,
ये आपने सुना होगा कि एक हाथ से लीजिए, दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि क्या आ रहा है ना? सो उस तरह से आपको सोचना है। और मेरे हिसाब से मेरा फिलॉसफी कहता है कि मैं अगर ये करता हूँ ना, क्योंकि मैं दिल से देता हूँ, और जो लोग दुआएँ देते हैं ना, वो तो दिल से देते हैं, और वो दुआएँ फिर आपके लिए काफ़ी होता है। ये बहुत नोबल और इस नोबल कॉज़ है। ये क्या होता है, ये पैसों में तोला नहीं जाता। सच बोलता हूँ दोस्तों। आपने कभी किया होगा ना, आप दिल से पूछिए ये बात, कभी आपको दिल में लगा कि पैसा इम्पोर्टेंट है उस वक़्त में? नहीं, दिल से आपने दिया है, और दिल से आपने जो चीज़ किए करते हो ना, कायनात, पूरी कायनात आपके लिए काम करता है मेरे दोस्त। ये याद रखिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है थिंग, बिकॉज़ द लॉट ऑफ मनी इन द देयर इन द वर्ल्ड, यू कैन एनी टाइम यू कैन वर्क हार्ड एंड गेट दैट मनी। बट व्हेन यू गिव चैरिटी, नो, फीड समवन हू इज़ हंग्री, हेल्पिंग समवन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 2 लाख खर्चा कीजिए, 2 करोड़ खर्चा कीजिए, मैं बोलता हूँ सिंपल एक ₹100 दे दीजिए आप। अभी की सिचुएशन में कितने लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए, किसी के पास खाने के लिए खाना पैसा नहीं है। आप माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए, जो लोग दूसरे स्टेट से बेचारे लोग यहाँ पे आए काम करने के लिए, उनका क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा मीडिया में, न्यूज़पेपर में, वो लोग बेचारे इधर के नहीं उधर के नहीं हो गए, है ना? सो ये सब आपको देखना है, आपको समझना है ना, दुनिया में क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ कैन यू हेल्प देम इन अ वेरी स्मॉल मैनर। मेरे दोस्त, आई एम नॉट सेइंग डोंट बी चेक से दिल से आपका फैमिली आपका इम्पोर्टेंट है, आपको वो भी देखना है, पर उसी टाइम में आपको ये बैलेंसिंग में करना। सो ये क्या तराजू की तरह है, किसी का पल्ला भारी होता है, किसी का पल्ला कम हो जाता है। सो आपको देखना है ये सब। तो मेरे दोस्त, आप आज से स्टार्ट कीजिए, मुझे लगता है कि आप प्रॉमिस कीजिए मुझे, यू विल स्टार्ट सम अमाउंट ऑफ चैरिटी, कुछ भी आपके नीचे कहीं पे आपको दिखता है कि भाई कुछ देना है मेरे दिल से दीजिए आप मेरे दोस्त, दिल से। और वो बात ना आप जाके फैमिली मेंबर को बताइए, आपके वाइफ को, आपके बच्चों को बताइए। मेरे दोस्त, वो बहुत असर पड़ता है। आपके दोस्त को, आपके बच्चे को ये सीखने से मिलती है कि भाई पापा ऐसा कर रहे हैं, मामा ऐसा कर रही है, मैं भी ऐसे ही करूँ। ये जो गुड हैबिट्स होता है ना, ये आप अभी से बच्चे के सिर पे डाल दो, बच्चे के दिमाग। देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई प्रॉमिस दैट मनी रेन विल फॉल इन यू। मनी का बारिश होगा, पैसों का बारिश होगा, और विजुअलाइज कीजिए आपकी पैसों का बारिश हो रहा है, यू विल गेट दैट मनी। अब मैंने चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, एप्रिशिएट योर सर्विस प्रोवाइडर्स अ पेड हिम इन टाइम। मुझे पता है कितने लोग, मैं जैसे आपको बताया पिछले बार भी, कि कितने लोग पैसा ड्यू में दे रहे हैं, मेरे को बताइए। 29 तारीख तक बहुत कुछ लोग देते ही नहीं है, पैसा जकड़ के रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं आप? छोड़ दीजिए ना आप, देखिए आपने सर्विस लिया है, आपको देना है, दे दीजिए आप। सिंपल एग्जाम्पल, मैं ये सिंपल एग्जाम्पल मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, मैं सभी को बताता हूँ। आप ये याद रखिए कि आपका सैलरी, अगर आपके बॉस रुकता है, ये मैं सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बता रहा हूँ, अगर बॉस बोलता है कि मैं तुझे आज महीने का सैलरी नहीं दूंगा पर तेरे को काम करना है, आप करोगे कि नहीं मुझे बताइए? आप करते हो? क्यों? मजबूरी है। और फिर भी 2 महीना 3 महीना आपको देंगी नहीं, तभी भी आप करोगे? नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है ना? तो वो बिज़नेस में मुझे बताइए, जिनके जो आपका क्लाइंट्स है, जिनको आप क्रेडिट देते हैं, आप ये लॉकडाउन के बाद आप क्रेडिट कम करोगे, राइट? सो अगर आप उनको नहीं दोगे आप, तो क्या होगा मुझे बताइए? क्रेडिटर्स आपको पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? तो बहुत कुछ मायने रखता है इस बात में, एंड यू नीड टू रियलाइज़ दैट आल्सो। सो यू नीड टू थैंक फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। आपका लाइट बिल, आपका वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी अभी आ रहा है, इससे कम सिचुएशन में, इससे कम से कम लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है, लोगों के पास लाइट नहीं है, फैन नहीं है, गर्मी हो रही है, but still you are enjoying that. So you need to thank them और उनका पैसा दे। That's a way of happiness, एक स्टेट हो जाता है, मन की खुशी और ग्रेटिट्यूड हो जाता है। एंड बी जनरस एंड हेल्प अदर्स। ना मेरे दोस्त, ये एक बात रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरस होना आपका बहुत जरूरी है। आप जितना दिल खोल के आप दोगे, उतना दिल खोल के आपको मिलेगा। और ये कुछ भी हो सकता है, पैसे में, पैसे से तोड़ती ना, मैं आपको बोलता हूँ ना, पैसे से तोलिए मत कुछ भी, सब कुछ पैसे से तोड़ता नहीं। सर्विसेज दीजिए ना। आपको मालूम है पंजाब में गोल्डन टेम्पल का नाम आपने सुना होगा, अमृतसर में। वो लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? कोई भी जाते हैं सिख वाले, खुद वो खाना पकाते हैं। वो लोग ही गुरुद्वार में जाते, भगवान से प्रार्थना करते, सब कुछ करने के बाद वो लोग खुद
आके मदद करते हैं दूसरे को, खाना पकाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, चप्पल जो रखते हैं वो भी चप्पल बाहर के लोग नहीं, आपके मंदिर में हमने देखा, पर बुजुर्ग में वो अलग होता है। कभी आपको टाइम मिले ना, कभी आपको एक संदर्भ मिला, आप जाके देखिए कि लोग कैसा वहाँ पे काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ना आप भी उनके साथ ना मिलके एक बार का मेहनत कीजिए। मैं ये पर्सनली मैं करता हूँ, मेरे दोस्त। मैं भले एक साउथ इंडियन हूँ, पर मैं जब मंदिर में जाता हूँ ना, किसी भी मंदिर में, अगर मंदिर में कुछ खाना देता हूँ, हमारे मंदिर में कैसा प्रसाद देना होता है, आपका हर मंदिर में होता है, राइट? सो उसमें एक महाभोग बोलते हैं आप, कभी कभी महापूजा होता है, तो उधर कैसा लोगों को प्रसाद देना है। तो पहले मैं नहीं खाता, मैं पहले पुजारी का जो बंदे लोग हैं उनसे मैं मदद लेता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ भाई मैं देता हूँ लोगों को, और मैं खुद जाके लोगों को खाना देता हूँ, और वो एक अलग सा ना फीलिंग होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्त। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द अमाउंट ऑफ मनी व्हाट यू गेट। वो नहीं होता है दोस्त, नहीं होता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज अगर इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ना, गो एंड डू एटलीस्ट वन दिस काइंड ऑफ थिंग नाउ। पोस्ट लॉकडाउन हमें मालूम नहीं क्या हो सकता है, बट यू डू एनी काइंड ऑफ सर्विस मेरे दोस्त, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्सपेक्टेशन ना, हार्ट दिल पे लगता है। ये मैंने बहुत पहले जान लिया है कि एक्सपेक्टेशन, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई डू एनी वर्क, be it my business related, be it my education related, or be it anything kind of thing, I don't expect anything, I give it my 200%. So आपको ये जानना है, that's very important. The universe does not care how big or small your contribution is. Even the small act of giving is sure to attract some good fortune, including the attraction of more money. So when you give it from place of genuine love and compassion to others, no, आप देखिए आपके पास एक बड़ा सा रूम होगा, where you will receive all the abundance of wealth, health and prosperity. मेरे दोस्त, this is very important. आप इसको जानिए, इस साइकोलॉजी को आप जानिए, आपको जानना है इस बात को, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि अगर आप रिलीजियसली आप करते हो ना ये काम, आपको मिलेगा जरूर, पूरी कायनात आपके लिए काम करे। आपने शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा, है ना, जब वो दीपिका पादुकोण को बोलता है, पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने पूरी कायनात का जो बोला है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिसीव ग्रेशियसली, व्हेन यू ओपन योरसेल्फ ना, रिसीविंग सेट अप into motion, wonderful cycle of give and take ना, वो होता है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है। आपको मालूम है क्या, मनी इज अ करेंसी, राइट? So therefore it is important to learn receive gracefully. So whether it's a money or gift or an article, accept gracefully, ले लो और थैंक यू बोलो। ना मत बोलिए आप, घर का लक्ष्मी, सब लोग बोलते हैं ना लक्ष्मी घर पे आते, तो ना मत बोलिए, भले ही 2 रुपया होने के ले लीजिए, थैंक यू बोलिए आप उस बंदे को जिन्होंने दिया है आपको। And that I guess, my dear friends, that will see your fate and get you the roadmap of financial freedom. I promise you that ये आप करेंगे ना, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, देखो मेरे दोस्त, पैसे से ऊपर बहुत कुछ होता है, और सेटिस्फेक्शन व्हेन यू गेट नो, दैट्स वेयर you are on the roadmap of financial freedom, my friends. So take it as a different way and seek a divine help. Now that is again I am coming to the next point, divine help. पर मैंने जैसे आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हमारे से ऊपर ना बहुत बड़ा पावर होता है, दैट इज गॉड, होली स्पिरिट, हायर पावर्स। तो ब्रह्मांड क्या करता है, हर एक का एक एक्सपर्ट है ना, हर एक के साथ कनेक्टेड होता है, इंक्लूडिंग मनी एंड फाइनेंसेस, हाँ, इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। सो यू ट्राई टू कनेक्ट विद द सोर्सेस ऑफ इनफाइनाइट abundance and let the spiritual law help you manifest money, wealth, prosperity, and resources. Surrender kar do, and pray from the bottom of the heart to Almighty God and ask what you want. Let go. Joyfully look forward to receiving. ले लीजिए आप, हंस के लीजिए आप, मत ऐसा मत कीजिए क्या यार, मुझे यार इतना कम दिया यार, नहीं यार, लेना यार, उन्हें दिया ना यार, थैंक यू सो मच यार, कल तो कोई देता भी नहीं है। टेल दिस वे, टेल दिस वे, I am sure you will be in a abundant state of mind. आपको वो खुशी होगी, you will can't imagine, you can't express that feeling. That's what happened with me. मेरे साथ भी वैसे ही होगा। So stay in attitude of gratitude. मैं always says attitude of gratitude is very important. Giving thanks every day for everything you have. Attitude of gratitude में ना मैंने एक podcast बनाई है. If you can listen to my podcast, attitude of gratitude is very important. अब जाइए, very soon I'll be making into YouTube video. So believe
I am believing you, you will be guided and taken care of anything. Let the infinite intelligence shows the right way to money and riches, or rather create the ways for you. And then that's why you're blessing your money. That's the next point. Bless your money. We use the same old techniques. Bless your money. Do this daily and regularly. Pull out the money from the wallet. Wallet से आप निकालिए, currency को हाथ में रखिए और भगवान से प्यार. Thanks to currency knows as your representative. आप बोलिए ये मेरा मनी का सूत्रधार बोलते हैं ना, वो बोलिए आप. And praise them for being with you. With affection and prayer, command the money to with yourself and go on multiplying itself many folds. Whatever you praise, that no increases or expands. Praising work the same way on money too. This is simply because you're showing interest in that. Activity of praising is a kind of blessing. Remember that activity of praising is a kind of blessing. And trust me, bless every single penny of your money. That is where you can learn from your money mistakes in past and make peace. This is the next point. आई एम श्योर आपने बहुत बारी मिस्टेक्स किए होंगे, तो मनी को फेंके होंगे, कभी डिसरेस्पेक्ट किए होंगे, आपको डर लगता है कि और मनी बिलीफ होता है ना, मनी द रूट कॉज ऑफ बिलीफ. रिच तो रिच होता है भाई, अमीर लोग तो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, राइट. एवरीथिंग एवरी might have seen that and heard from our parents and everything, so no problem with that. But actually these are the wrong assumptions which we have inherited ourselves. That's a wrong beliefs. But if you see, a lot of studies have been done with the rich of the billionaires, millionaires, and they have worked really worked hard, my dear friends. मैं हमेशा ये तीन शब्दों का इस्तेमाल बराबर करता हूँ. हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी. आप हार्ड वर्क तो करते हो, सब लोग करते हो, नो डाउट. मुझे मालूम है कि आप हर एक इंडिविजुअल जो अब यूट्यूब देख रहा है, दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. बट डू यू हैव द कंसिस्टेंसी इन यू? कंसिस्टेंसी देखिए आप. मैं सिंपल एग्जांपल करता हूँ. आप मेरे वीडियो देखते हो, कितने बार आप लॉग इन करके मेरे वीडियोस देखते हो? दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी. तो वही आपके काम में भी होना चाहिए. अगर आप 12 घंटा दे रहे हो, डेली का 12 घंटा दे, तो 12 घंटा दीजिए. आप दिल खोल के आप काम कीजिए एंड लेट गो द मनी फील्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ दैट यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मिसगिविंग्स, आपने जो सुना है, ये सब कुछ देखा है, एंड नाउ it is time to correct your mental programming and belief system of the money. So take time. मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ. Take time of your this thing और जर्नल, एक बुक बनाइए with total honesty में. Just spend on whatever comes in your mind. Okay, and no editing, my dear, no editing. Nobody except is going to read this or pen all the past beliefs and result and actions with regards to money. Make peace by saying that it is okay now. It is okay. Forgive yourself and go now. I promise yourself कि आप अगली बार नहीं करोगे. मैं इस तरह से बनाया हूँ, मैंने इस तरह से, और मैंने मनी बिलीफ्स में लिखता हूँ कभी कभार. That is what I am saying. कि मैंने जो इम्प्लीमेंट किया ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, that's why I am sharing with you. So you can do it and you will have a beautiful life of abundance. I guarantee you that. So मैं अभी last presentation में आया हूँ. So I want to just summarize कि some people will seem to get rich and effortlessly, okay, compared to other people who work very tired, as yet they do seem well. Okay, that is the law of the nature. क्या by you, some of them will be in the different chapters. That is what I always say. You may be in the chapter 1, I may be in chapter 2 and 10. Some may be chapter 15, some may be chapter 21. सब इंडिविजुअल्स अलग अलग बनाए भगवान ने ना, हर एक को अलग दिया है. आपके पास एक स्किल है, आपके पास एक एबिलिटी है जो किसी के पास नहीं हो सकती. एंड दैट यू नीड टू फाइंड आउट, एंड दैट्स द स्पिरिचुअल वे फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट. So you have the secret now, manifestation, wealth creation, and I am sure you know how to make money. So just follow the above tips और manifest कीजिए money, wealth, cash in abundance, and जो भी करना है आपको लाइफ में दिल खोल के कीजिए. But give attention, love and focus to your money and change your attitude to the positive one. इसको ऐड कीजिए generosity, gratitude, goodness. ताकि क्या होगा कि negative blocks of money जो होता है ना, वो निकल जाएगा and will be connecting the source of infinite abundance. Okay, so be ready to attract more and more money. So thank you so much guys, thank you so much. आपने इतना टाइम निकाल के आपने सुना ये बात. So please like my Facebook page, that is MBK Financials, and my YouTube channel MBK Financials for more such updates, for more such videos. And stay tuned for yet another episode. मैं कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए पर्सनल फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ताकि आप एक कदम और आगे जा सके फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर. तो थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Cheers.